Assalamu alaikum viewers. This is Danish with our new segment Powerful Stories. In this segment, you will meet some ordinary people with extraordinary stories to inspire you. You will be able to hear powerful voices, meet impactful personalities, and get yourself inspired. Our first story is featuring Afreen Mushtaq, who has now become a face of Pakistani society, where women have the courage to bring about the change. Afreen is currently a sophomore student at the Institute of Business Administration, Karachi, and is currently pursuing her BBA degree under the IBA National Talent Hunt program that enables her to continue her education on a 100% scholarship. She has recently delivered a TED Talk which has been watched by around 4,000 people in just 5 days. She has an innate desire of empowering every single woman on earth, as she believes that women are unaware of the potential that they possess. So let's welcome her to our show. Hello, Assalamu alaikum, Afreen. How are you? Walaikum Assalam. I'm good. How are you? I'm good too. So, how is it going? How is life? Um, Busy, overwhelming, all at the same time. Like we are all stuck up in quarantine. Not really stuck up, but safe at our homes. But like semester is going on, and Uh, we are bombarded with assignments and reports and quizzes. So yeah, few Perfect, weeks have been very busy. perfect, perfect. So tell me, Afreen, ये जब आपकी TEDx talk आई, how did you feel about it, and what kind of response you got from your friends, from your family members, from the people you know in your circle? क्या क्या तासुरात थे उनके जब उन्होंने आपके ये talk देखा? To be very honest, जब मुझे बताया गया था कि नेक्स्ट डे विल बी अनाउंसिंग कि आपका TEDx है और वो अप्रूव हो चुका है, तो बस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थिंकिंग के पता नहीं मैंने जो बोला है वो लोगों को पसंद आएगा या नहीं, या मतलब वो एक प्रैंक तो मतलब एक जोक तो नहीं बन जाऊंगी मैं, या मतलब मैं बहुत सारे थॉट्स थे जो माइंड में आ रहे थे और मैं मतलब बहुत घबराई हुई थी कि किस तरह के रिस्पॉन्सेज होंगे जो मुझे लोगों से मिलेंगे। लेकिन Right. नेक्स्ट डे मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि, और ना ही आईबी की तरफ से उस वक्त तक ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने वो वीडियो देखी एंड एवरीवन वाज सेंडिंग मैसेजेस एंड वॉइस नोट्स। एंड मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझे वॉइस नोट्स भेजे, ही सेड कि उसकी अम्मी की स्टोरी भी समवट सिमिलर है। Okay. और फिर मैंने उससे बताया कि मैं थोड़ी सी परेशान थी बिकॉज ऑफ दी कैंपेन्स एंड प्रमोशनल जो भी हम मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर रहे थे उसके लोगों के रिस्पॉन्सेज, और मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे लोगों से मिला। फिर जब मैंने अपनी फैमिली को दिखाया, मैंने एक पूरा सेटअप बनाया, सब लोगों को साथ बिठाकर एक साथ वो वीडियो प्ले की। And when the video ended, my dadi was really emotional, like she had tears in her eyes. तो वो मोमेंट बहुत ज्यादा ऐसा था कि everybody was speechless and एक खामोशी थी कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा उसके बाद जब वो वीडियो खत्म हुई है, तो सब इमोशनल हो रहे थे। तो It must बहुत be अच्छा रिएक्शन। yes, absolutely. It must be an emotional state for all of your all of the people you know, और आपके लिए खुद भी definitely, because you gave that live talk, and then of course उसको फिर जो है वो screens पे सुनना is another feeling altogether. Well, I'm really glad that your talk has been able to got so many followings. आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो है वो लाइक्स उस पे आ रही हैं, बहुत सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है, एंड आई होप दैट दिस पर्टिकुलर टॉक विल इंस्पायर मैनी वुमेन आउट देयर जो कि इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जिनको मुश्किलात होती हैं, तो वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगी कि किस तरह से जो है वो आपने एजुकेशन के लिए अपनी फैमिली से, सोसाइटी से जो फाइट की, एंड यू केम अप टू आईबीए फॉर एक्वायरिंग हायर एजुकेशन। अच्छा, मुझे मुझे बताएं। जी आफरीन, प्लीज। मुझे इस तरह के भी काफ़ी रिस्पॉन्सेज मिले, मतलब कुछ लोगों ने मैसेजेस करके कहा कि उन्होंने ये वीडियो अपनी बेटियों को दिखाई है और एनकरेजिंग देम कि वो भी इस तरह से मतलब मेहनत करें। अब
काफ़ी सारे मेरे जूनियर्स जो एनडीएचपी में थे और आईबीएम में नहीं आ पाए, या काफ़ी सारे मेरे जूनियर स्कूल से उनके मैसेजेस के लाइक आप हमारी मतलब इंस्पिरेशन बन गई हैं और मैं भी करके दिखाऊंगी। तो इतनी खुशी हो रही थी उन बच्चों के मैसेजेस देखकर जो मतलब अब वो चाहते हैं कि वो भी करके दिखाएं वो चीज़। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने अब तक जो किया है वो सिर्फ अपने लिए किया है, लाइक मेरे लिए मेरी तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और मुझे था कि आई विल नेवर टेक नो फॉर एन आंसर, भले मेरी फैमिली मुझे रोके या कुछ भी। और उसके लिए मेरे लिए एक चीज़ थी कि ऑब्वियसली अगर मेरे बाबा मना करेंगे तो मुझे मानना पड़ेगा बिकॉज़ ही इज़ माय फादर। तो तो मुझे ये था कि मैं हमेशा कुछ ऐसा करूँ कि वो उनके लिए मुश्किल हो जाए मुझे नो कहना, कि अगर मैं चाह रही हूँ आगे पढ़ना या मैं चाह रही हूँ कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना, कोई वर्कशॉप अटेंड करना, तो उनके लिए ना कहना नामुमकिन हो जाए कि मतलब अगर मेरी बच्ची में पोटेंशियल है तो मैं कैसे रोक लूँ, वो जो पार्ट है उनके अंदर उनके लिए मेरे लिए जो मोहब्बत है वैसी जाग जाए कि मेरी बच्ची कर सकती है। तो राइट वो वाली चीज़ हमेशा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। राइट। अच्छा, आफरीन, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे गुजरा। हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ योर जर्नी। आपने जो है अपनी स्कूलिंग कैसे की। सो टेल आवर व्यूवर्स के आपकी जो है वो स्टार्टिंग डेज यानी चाइल्डहुड डेज कैसे थे। I was a very happy child and foodie too. Uh, I was the joker in the family. I still am a joker who keeps everyone entertained. So, मेरी schooling, I joined an NGO school in 2003 when I was just, I guess, 4 years old. Because resources इतने नहीं थे, private schools join नहीं कर सकते थे, और बिलीव मी ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब मेरी फैमिली का सबसे अच्छा डिसीजन था मुझे स्कूल में एंटर करना, बिकॉज डेवलपमेंट लिटरेसी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वो औरंगी में तकरीबन 18 से ज़्यादा ब्रांचेस रन करता है। इसके अलावा हमारे मीरपुर खास में ब्रांचेस हैं और भी डिफरेंट एरियाज में हमारे ब्रांचेस हैं। तो वो जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है और जिस तरह से बच्चियों की एजुकेशन को प्रमोट करता है, मेरे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक आज मैं जिस तरह से भी लोग मतलब मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारे बात करने का अंदाज है, जिस तरह से तुम अपना मैसेज डिलीवर करती हो, वो अलग है बाकी बच्चों से। मतलब आई रिमेम्बर जब मैं अपनी टेडेक्स की स्पीच लिख रही थी, तो मुझे जिन लोगों से मैं अपनी स्पीचेस अप्रूव करवाती थी उनसे भी मुझे ये रिव्यू मिलता था कि थोड़ा इसको मॉडिफाई करो, तुम्हारा राइटिंग स्टाइल बहुत मैच्योर है। और वो चीज़ मुझ में है एक थोड़ी सी, तो वो जो कुछ है वो मैं उसका क्रेडिट अपनी स्कूलिंग को ही दूंगी, क्योंकि हमेशा से हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में और इस तरह के इवेंट्स में इन्वॉल्व किया गया था कि आई अर्न पाकिस्तान, पायदार पाकिस्तान और इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स में बार बार मतलब स्कूल के छोटे छोटे इवेंट्स से ही मुझ में वो चीज़ डेवलप हो गई कि किस तरह से बात करना है, किस तरह से। आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार स्कूल में परफॉर्म किया था, दैट वाज कोई नाच कंपटीशन था, और क्योंकि मैंने हम सेलेक्ट की थी तो आई वाज द फर्स्ट वन टू परफॉर्म, एंड बिलीव मी मेरे अलावा वो किसी ने नहीं सुनी थी क्योंकि मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। मेरी बहन ने पार्टिसिपेट किया था, वो जीत कर आई थी और मैं हार गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई सुनता तो मैं जीतती शायद, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही थी। तो इस तरह से मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने मतलब सीखा और मेरी प्रोग्रेस जो है वो स्कूल की वजह से रही। Other than that, I had been a firm believer of dreams. Like even in my childhood, a day before annual celebration, I'll keep thinking about going up on the stage and receiving my first prize. I know it's funny. Um, there was this one time I was in fifth standard, and I got second position in half yearly examinations. So I was very upset, and that day I realized that life is not only about dreaming, but keep working hard to make those dreams come true. So वो दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था, जब मुझे ये था कि अच्छा मैं सेकंड आई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं था कि कोई और फर्स्ट आया है, मुझे ये था कि अगर वो आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। तो ये चीज़ हमेशा लाइक लाइफ ओवरऑल एक कंपटीशन की तरह रही है हमेशा मेरे लिए, लेकिन अब मतलब जिंदगी के साथ। Right. That's brilliant. I mean, you have kept yourself going by motivating yourself, और I think यही आपकी जो अब तक के ड्रीम्स अचीव हुए हैं, जो या आपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, वो आई थिंक इसी वजह से है कि आपके अंदर एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर एक आगे बढ़ने की एक चाहत है, जिसको हम पैशन कहते हैं या हम जिसको कहते हैं कि एक स्पार्क है। दैट स्पार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। और वो जिस चीज़ के लिए पैशनेट है, आई थिंक उनको उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर फील्ड में ज़रूर जाना चाहिए।
So Afreen, people also want to know about your family के कितने भाई बहन हैं, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं. So tell us about your personal life as well. मेरी फैमिली लाइक वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली, तो मेरे चाचू भी हमारे साथ रहते हैं, दादी हैं, सब लोग साथ रहते हैं फैमिली. स्पार्क की आपने बात की, उसके साथ मैं कंटिन्यू करूँगी कि जब मेरा पहला सेमेस्टर था दैट डे आई फेल्ट लाइक कि अब मेरा स्पार्क गुम हो जाएगा, मतलब Okay. अब आफरीन गुम होने वाली है, क्योंकि एयरफोर्स नहीं है. अब एक आफरीन एक ऑर्डिनरी लड़की है जो जो फाइटर पायलट नहीं है, जिसको निशाने हैदर नहीं मिलेगा. तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गुम हो रही हूँ. मैं नहीं करती थी लोगों से बात, मतलब मैं वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से, बहुत पॉजिटिव हूँ मैं, लेकिन उन दिनों ऐसा टाइम था कि मैं नहीं मिलती थी किसी से. So Afreen, लेकिन just to cut you off, आपका इनिशियल एक ड्रीम था कि you wanted to become a pilot, right? एयर फोर्स, पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए आप काम करना चाहती थी या उसमें एज अ पायलट अपनी सर्विस देना चाहती थी. ये ख्वाब आपको कब जो है वो आया, या कब आपने सोचना शुरू किया कि आई वांट टू बी अ पायलट? और फिर जब ये चीजें चेंज हुई तो वो रियली हेल्प यू आउट, और व्हाट प्लेटफॉर्म्स डिड इट हेल्प यू आउट in carving out your career? जो मुझे बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, उससे मुझे याद है कि आई वाज लाइक 7 or 8 years old, जब मैं मेरी दादी चारपाई पे बैठी होती थी और मैं चारपाई के नीचे से क्रॉल करके कहती थी कि सोल्जर्स ऐसे बॉर्डर वायर के नीचे क्रॉल करते हैं. तो Okay. मुझे बहुत खुशी होती थी. इसके अलावा जब हर 14 अगस्त टीवी पे कुछ मिली नगमे आया करते थे, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा जोश में आ जाती थी कि मुझे यही करना है. इसके अलावा मेरे लिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से एक ट्रिगर पॉइंट रहा है, कि मतलब एक बाहरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाती है कि क्यों है वो चीज़ मुआशरे में. तो इस वजह से भी ये था कि मुझे वो करियर परस्यू करना है जो मेरी फैमिली को लगता है कि सोली सिर्फ बॉयज़ के लिए ही है. और बिलीव मी, ऐसा ही हुआ था. जब मैं बताया करती थी अपनी फैमिली को, जब मैंने कहा कि मैं फौज में जाऊंगी, तो उनके रिएक्शंस ऐसे ही थे कि मतलब ये सब नहीं होगा और लड़कियां ये काम नहीं करेंगी. मुझे याद है मेरे चाचू मेरे भाई के लिए गन लाए थे एज अ टॉय, मतलब टॉय गिफ्ट, और मेरे Okay. लिए डॉल लाए थे. मतलब तो उन्होंने जो मेरे दोनों भाइयों को वो गन्स दी, तो मैंने अपने छोटे भाई से वो गन छीन ली और उसे वो डॉल दे दी. ठीक है, ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद नहीं थी, मुझे गन्स का ऐसा जेट्स का और ऐसे छोटे टॉयज का शौक था. इवन मैंने 2015 में यूएस में एयर स्पेस म्यूजियम से एक जेट खरीदा था, और वो Okay. अभी तक मैंने किसी को टच नहीं करने दिया, बिकॉज इस तरह से. तो हमेशा से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी मुझ में एक बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मुझे खुद को प्रूव करना है कि लड़कियां क्यों नहीं. इवन स्कूल में एक बार एक क्रिकेट कंपटीशन हुआ था, मेरा भाई हमेशा मतलब इस तरह से भाई क्रिकेट वगैरह खेलता है, हम दोनों अलग टीम्स में थे. और खुदा की मर्जी ये थी कि मेरी टीम जीत गई. और जब उस दिन मैं मेडल लेकर घर वापस आई और मेरा भाई मतलब ऐसे थोड़ा सा उदास होकर वापस आया, तो मेरी दादा का कमेंट यही था कि मतलब पूरे दिन बाहर खेलते रहते हो और तुम नहीं जीते हैं, और उससे तो हम खेलने भी नहीं देते बाहर क्रिकेट, तो वो जीत गई है. तो मतलब वो चीज़ हमेशा रही है, एक कंपैरिजन जो वो हमेशा करते रहे हैं लड़कियों का लड़कों के साथ, तो वो चीज़ हमेशा मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट रही है. इसके अलावा मेरी फैमिली के बारे में आपको बता रही थी कि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, एक छोटी बहन है, 2 छोटे भाई हैं, अ, बाबा, अम्मी, चाचू, चाचू के 2 बच्चे हैं, दादी. So मेरी आपकी बड़ी दोनों बहनें या आपकी दो बड़ी बहनें हैं, right? What they are doing? Um, the one was doing software engineering Okay. from Virtual University of Pakistan, and the other is doing biotechnology. She That's is fine. doing it in college. She's also doing it from the Virtual University of Pakistan. Mainly उनको अपने expenses खुद bear करने होते हैं, job साथ लेकर चलनी होती है, इसलिए उन्होंने Virtual University join की थी. उन दोनों का ये है कि like believe me, my childhood wouldn't have been the same without them. वो दोनों they're like very shy, mature and sober. And I was the one troublemaker. वो मुझे समझा रहे होते थे नहीं करते हैं डांट पड़ेगी. I was like कर लेते हैं, डांट सुन लेंगे, हो जाएगा. तो वो दोनों बेचारे थोड़े मासूम से थे. इवन फर्स्ट सेमेस्टर जो मुझे लगता है मैंने खराब किया, उसकी एक वजह ये भी थी कि हर शाम हम मैंने जब रात को सोने से पहले पूरा दिन कैसा गुजरा वो एक दूसरे को बताया करते थे.
जो भी अच्छी या बुरी चीज़ें होती थी, एक तरह से वो निकल जाती थी हमारे अंदर से। लेकिन हॉस्टल जाने के बाद अगर कुछ बुरा भी है, कोई चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, तो ऑब्वियसली वो मैं नहीं बता सकती फैमिली को, क्योंकि वो परेशान होंगे। इट वाज़ लाइक चीज़ें बहुत ज़्यादा पाइल अप हो रही थी, और इस वजह से भी मतलब आई वाज़ पुलिंग माय सेल्फ बैक। सही। तो आफरीन बताइएगा कि ये जो आईबीए का सफर था या जो आईबीए तक पहुंचने का सफर था, हैव यू एवर बीन थॉट ऑफ कमिंग टू आईबीए, सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान, कि आप कभी यहाँ आके पढ़ेंगी? अ, अगर सोचा था तो आप बताएं कि क्या सोचा था, और अगर नहीं सोचा था तो जो है वो आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक की? So being very honest, मुझे आईबीए का नाम तक नहीं पता था, और ये जो आंसर मैं आपको अभी दे रही हूँ, मैंने इस आंसर की वजह से अपना पहला इंटरव्यू एनटीएचपी का फेल कर दिया था। ओके। आई वाज ऑन द वेटिंग लिस्ट। जब मुझे मेरे स्कूल की करियर काउंसलर ने नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के बारे में बताया, तो मेरा रिस्पांस था कि नहीं, मुझे अप्लाई नहीं करना, मैं तो फौज में जाऊंगी, मैं तो फाइटर पायलट, मेरे लिए बैठे हुए एयरफोर्स वाले, बस मैं पहुंचूंगी और मुझे वो ले लेंगे। मतलब इस तरह का मेरा रिस्पॉन्स था कि मतलब नहीं, मुझे फाइटर पायलट बनना है। राइट। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आपके पास हमेशा दूसरे ऑप्शंस ओपन होने चाहिए, आपको नहीं पता कि मतलब लाइफ इज वेरी अनसर्टेन, तो आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने सही। मुझे काफ़ी समझाया, आई वाज लाइक, फिर उन्होंने मुझे बताया आईबीए के बारे में, क्योंकि बिलीव मी, हमारे स्कूल के बच्चे या मेरे मोहल्ले में आज भी मैं किसी को बताती हूँ कि मैं आईबीए में पढ़ती हूँ, उन्हें नहीं पता आईबीए क्या है, उन्हें नहीं पता आईबीए कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपनी सेकेंडरी एजुकेशन तक भी नहीं पहुँच पाते। इवन मेरी अपनी गली में जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने सिर्फ अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट की है। तो जब उन्होंने मुझे आईटी के बारे में बताया, तो मुझे बड़ी फैसिनेट करने लगी वो चीज़ कि अच्छा, सबसे बड़ा बिजनेस इंस्टीट्यूट है कराची में, ठीक है, करते हैं, जाके देखेंगे। फिर जब मैं पहली बार टेस्ट के लिए गई, तो मुझे आईबी एक अलग दुनिया लगी। बिलीव मी, आईबी एक अलग दुनिया है। और मुझे ये था कि अच्छा, यहाँ आना है, भले ट्रेनिंग सेशंस के लिए मुझे बाद में एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़े, लेकिन वो 2 महीने मैं अपनी ज़िंदगी में एक नए एक्सपीरियंस के लिए इसे, लेकिन मैं यहाँ आऊँगी ज़रूर। फिर टेस्ट क्लियर हो गया, और इंटरव्यू सेशन में जब मैंने अपने इंटरव्यूअर से, सारा कुछ बहुत अच्छा था, सब्जेक्टिव आंसर्स मैंने सब कुछ बहुत अच्छे दिए। बस एक ही पॉइंट जब उन्होंने पूछा व्हाई आईबीए, और मैंने उनको सच बताया कि मुझे नहीं पता कि आईबीए एग्जिस्ट करता था, मैंने मतलब इंटरव्यू फेल किया और मैं वेटिंग लिस्ट पे थी। खैर, आई डोंट नो, शायद अल्लाह ताला चाहते थे कि मेरा वो ख्वाब भी सच हो, तो या मुझे यहाँ तक पहुँचना था, तो इसलिए मैं वेटिंग लिस्ट से एनटीएचपी सेशन से पहुँच गई। मैंने 2 हफ्ते लेट सेशंस ज्वाइन किए थे, बट देन वहाँ पे रहते हुए मुझे इतनी खुशी हुई होती थी। मेरी रूममेट बलोच थी, मतलब जो हमने किताबों में पढ़ा है, मैंने कहती थी आप बलोची हैं, और वो मुझे डांटती थी, जुबान बलोची होती है, इंसान बलोच होता है। लेकिन इतनी सारी कल्चरल चीजें सीखने को मिलती हैं, और हर तरह से गिलगित के दोस्त, सिंध के दोस्त। तो जब वो चीज़ें जो मैंने, मुझे अपनी ज़िंदगी में लगता है कि इंसान की पर्सनल ग्रूमिंग में, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में जो 2 चीज़ें भरपूर किरदार अदा करती हैं, एक ट्रैवलिंग, जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करेंगे, आपकी पर्सनालिटी उतनी निखर कर, मतलब आप उतने बेहतर होते हैं। और दूसरी चीज़ डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा आप डाइवर्सिटी पे एक्सपोज होंगे, उतना ज़्यादा आपको ज़िंदगी की समझ आती है। और एनटीएचपी में तो बच्चे भी ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से होते थे कि मुझे लगता था मेरी स्ट्रगल कुछ नहीं है, जहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया ज़िंदगी में, मुझे वो चीज़ फील होती थी। फिर ऐसा हुआ कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ पे जब एयरफोर्स ने अनाउंस किया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होंगे उस हिसाब से, तो मुझे वो चीज़ बॉदर करने लगी। मैंने कहा कि छोटी सी भी बात हो अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू बन जाती है। मतलब मुझे वो चीज़ तंग करती रहेगी जब तक मैं उसको ठीक ना कर दूँ। तो मुझे ये था कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो मैं नहीं करूँगी। मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा, आफरीन, तुम्हें देख के लगता है कि तुम रुकोगे नहीं जब तक तुम वहां तक पहुंच जाओ जहां तुम्हें पहुंचना है, तो फिर कुछ और ट्राई करो। एयरफोर्स अगर नहीं हो सकता, तो मतलब रुकने की जरूरत नहीं है। और मेरे लिए भी ये चीज़ ऐसे ही थी, क्योंकि मेरे लिए 7 साल की उम्र में मैंने सोचा कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है। 2017-18 के दौरान मुझे पता चला कि एयरफोर्स में नहीं ज्वाइन कर सकती। तो वो जो 10 साल में अपनी फैमिली को कन्विंस करती रही थी, मुझे ऐसा लगता था जैसे सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर, मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, कि कोई ख्वाब सच नहीं होगा, और सिर्फ बोलने वाली बातें हैं, तुम नहीं कर सकती। भले वो मुझे कहे नहीं, लेकिन उनकी नजरें, मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे ऐसे ही देख रहे हैं, जैसे सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर। तो मेरे लिए ये था कि लाइक, ब्रिंग इट ऑन, अब मैं दिखाती हूँ, अब मेरी बारी।
मैं मेरे लिए लिटरली जिंदगी पूरी मेरी इसी तरह से मैंने निकाली है कि जब भी मुझे कोई क्वेश्चन करता था कि मतलब कि क्यों इस तरह के ख्वाब देखती हो, या कोई क्वेश्चन करता था कि कैसे करके दिखाओगे इन ख्वाबों को, मेरी होता था कि आप देखें, सिर्फ आप देखें, मैं दिखाती हूँ आपको। तो वो चीज़ हमेशा मतलब एक ड्राइविंग फोर्स रही मेरे लिए कि मुझे खुद को साबित करना है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इतना सीरियसली लेती हूँ क्योंकि हमेशा जब भी कोई इंटरव्यू होता है, कोई सेशन होता है, पहला क्वेश्चन होता है आप कौन है, और मैं ब्लैंक हूँ, मैं कौन हूँ, एक मेरे नाम के अलावा क्या पहचान है। तो लोग अगर मुझे जाने तो क्या है मेरे बारे में जो उनको जानना चाहिए, कौन हूँ मैं, ये क्वेश्चन मतलब मुझे बताना ना पड़े, मैं इतना काम करूँ अपनी जिंदगी में। Right. तो ये चीज़ हमेशा मुझे बहुत ज्यादा डिराइव करती रही। I think this is a fantastic motivator for everyone who's out there कि इंसान के circumstances जैसे भी हों, अगर उसकी ड्राइव, उसके अंदर वो एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मौजूद हो, तो he or she can achieve any dream, any goal that he has set for himself. दूसरी बात ये कि अब आपके, आई थिंक होप कि आपके मोहल्ले में लोग आईबीए को नहीं तो आपको तो जानते ही हैं, और आपके तो फैल वो आईबीए को भी जानते होंगे कि नाउ व्हाट आईबीए इज, ठीक है जी, या वो कहते होंगे कि जहां आफरीन पड़ती है हमें वहां पड़ता है। सो एटलीस्ट आपकी जो इन्फ्लुएंसिंग जो है वो बढ़ गई होगी, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, इस पर्टिकुलर टेड टॉक के बाद आई होप कि बहुत बड़े होंगे। एंड यू विल बी, जैसे आपने आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था, आपकी जो कॉलेज से आपको काउंसलिंग मिली, जो कॉलेज काउंसलर आपके पास थे। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान देयर आर लॉट ऑफ हाई स्कूल्स, देयर आर लॉट ऑफ स्कूल्स जहाँ पे काउंसलिंग का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। कोई कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई काउंसलर नहीं होता, कोई एडवाइजर नहीं होता जो आपको फील्ड के हवाले से या करियर के हवाले से बता सके। तो आई थिंक आपको डेफिनेटली आपने खुद भी मेंशन किया कि यू आर थैंकफुल टू दैट काउंसलर जिन्होंने आपको आईबीए के बारे में बताया, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के बारे में बताया, जिसके थ्रू आप यहाँ तक पहुँच पाए। तो आई थिंक अब आपके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप जो है वो एज अ काउंसलर, एज एन एडवाइजर जो है वो लोगों को सर्व करें। एंड आई होप कि यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। अगर थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि क्या डेफिनेटली सर। आप इस वक्त क्या एज अ काउंसलर रोल प्ले कर रही हैं, वॉलंटरली लोगों को गाइड कर रही हैं अबाउट देयर करियर्स, हाउ दे कैन परस्यू देयर ड्रीम्स और नॉट? डेफिनेटली सर, मेरे स्कूल में हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम एक एलुमनाई नेटवर्क बनाएंगे जो कि मज़ीद बच्चे जो अभी स्कूल में मैट्रिक कर रहे हैं या 9th स्टैंडर्ड में है, उनको हम डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। क्योंकि हम बच्चों को ये मतलब जब मैं भी स्कूल में थी तो मुझे यही लगता था कि आई थिंक मेरी फैमिली बेयर नहीं कर सकती एक्सपेंसेस, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो लम्स की स्कॉलरशिप, आईबी की स्कॉलरशिप, एचयू टॉप्स की स्कॉलरशिप, सेविस की स्कॉलरशिप, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके ना नाम पता है हमें और ना ही हमें ये पता है कि वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो करंटली मैं अपने स्कूल के साथ इन कोलैबोरेशन हूँ और हम एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें मैं और मेरे काफ़ी दोस्त हम हर स्कूल से हमने 3 और 4 बच्चे ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में हैं और अपनी कम्युनिटी से वो वाकिफ़ हैं, अपने स्कूल के जूनियर्स वगैरह से वो इन कॉन्टैक्ट हैं, ताकि बाद में जब हम सेशंस कंडक्ट करें तो बच्चों के लिए रिलेट करना आसान हो जाए उनसे। क्योंकि ऑब्वियसली आप जिनको जानते हैं, जैसे मैं अपने स्कूल के अपने जूनियर्स को, उन बच्चों को समझाती हूँ, तो उन्हें चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है वहाँ से, उनकी तरह ही वो सफ़र अपना कंटिन्यू रखते हुए, तो उनके लिए वो रिलेट करना आसान हो जाता है। तो करंटली उसके ऊपर काम कर रही हूँ मैं। इसके अलावा टीसीएफ के एक एलुमनाई हैं जिन्होंने मेरी स्टोरी के बाद मुझे अप्रोच किया था कि आप आईबीए में चौथी बच्ची ऐसी जो औरंगी टाउन से आई है, मतलब काफ़ी बड़ा हमारा स्लम टाउन है। तो उससे मैं चौथी बच्ची हूँ जो आईबीए आई है अब, तो वो भी उनमें से एक थे और वो आई थिंक 2013 में आई गेस वो ग्रेजुएट हो गए। तो वो चाहते हैं कि अब हम मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाएं ताकि मजीद बच्चे भी औरंगी के बाहर आ सके, क्योंकि बिलीव मी औरंगी में इतना पोटेंशियल है। जब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, मैंने घर वालों से जिद करके कोचिंग सेंटर ही इसलिए ज्वाइन किया था कि मतलब स्कूल में मैं बेस्ट हूँ, मुझे नहीं पता कंपटीशन क्या है, और बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है जिससे आपको मतलब जिसको आपको केटर करना पड़ता है। तो मुझे जब मैं बाहर निकली हूँ और इतने सारे बच्चे और सबके जहन इतने तेज हैं, मतलब आप नहीं भी उनको स्कूल में सिखा रहे हैं ना,
तो वो खुद एक्सप्लोर करेंगे, वो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ करने की। लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ग्राफिक्स में बहुत अच्छे हैं, एडोब फोटोशॉप में बहुत अच्छे हैं, और उन्हें ये चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जा रही। लाइक Right. मेजॉरिटी ऑफ दी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, कंप्यूटर लैब्स हैं उनके पास, लेकिन उनके कंप्यूटर की क्लासेस नहीं होती। कि इसके बावजूद हमारे बच्चे मतलब खुद मेहनत करते हैं, तो उन बच्चों को अगर थोड़ी सी बस डायरेक्शन दे दी जाए, उनको समझा दिया जाए, तो उनमें बहुत पोटेंशियल है कि वो करके दिखाएंगे। तो करंटली मैं 2 प्रोग्राम्स पे काम कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे मोहल्ले में ऐसा है कि पहले मोहल्ले वाली आंटियाँ कहती थी कि हमारी बेटियाँ ये सब काम नहीं करती, अब वो अपनी बेटियों से कहती हैं कि आफरीन को देखो उसने कैसे किया है, तुम भी करो। तो एक पर्सपेक्टिव उनका पूरा चेंज हो गया। वो Change हो चीज़ गया मुझे है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम्म, एटलीस्ट मैंने जो कोशिश की है वो किसी हद तक मतलब मुझे नजर आ रहा है उसका असर। that's fantastic. I think you have become an example for your society and for your community. और अब आपको लोग रोल मॉडल के तौर पे लेना शुरू कर चुके हैं. And I think it brings to another question कि अब आफरीन IBA में आ चुकी है, स्टडी कर रही है. अब उसका क्या ख्वाब है? What is she planning to do in future? पहली चीज तो मेरी पढ़ाई, मतलब पढ़ाई से मुझे लगता है कि मैं जिंदगी भर कभी अलग नहीं हो सकती, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है। तो मेरा एक ख्वाब था कि मुझे अब्रॉड जाके पढ़ना है। इवन हम्म, अंडर ग्रेड के लिए मुझे ये था कि मैं बाहर चली जाती हूँ, यूएसए चली जाती हूँ। हार्वर्ड जब मैंने पहली बार सॉरी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी देखी थी मैंने सैन फ्रांसिस्को में 2015 में पहली बार, और मुझे ये था कि मैं यहाँ आऊँगी, मुझे यहाँ हम्म, पढ़ना है। हम्म, तो वो चीज़ मुझ में थी कि मुझे अंडर ग्रेजुएशन के लिए मतलब जो है वो बाहर जाना है। हम्म, मैं सेकेंड ईयर में थी और मुझे ये था कि एसएटी के एग्ज़ाम अगर मुझे देना है तो उसकी फीस 12,000 है और मुझे वो जमा करनी पड़ेगी। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया और वहाँ पे मैं एज ए केमिस्ट्री टीचर पढ़ाया करती थी। तो मैंने ओके. 4 महीने जॉब की, मेरी सैलरी 3000 थी, और वो 4 महीने की जॉब से मैंने अपनी एसएटी की फीस जमा की। एसएटी की फीस जमा हो गई एंड देन आई रियलाइज कि आइल्स भी है और उसके बिना आप बाहर नहीं जा सकते। एंड आई वाज लाइक 65,000 मतलब पूरा साल रुकना पड़ेगा मुझे, एंड मैं अपना साल नहीं बर्बाद कर सकती। मैंने खुद को समझाया ठीक है अंडर ग्रेजुएट मतलब डिग्री यहीं से ले लेते हैं, ग्रेजुएशन के लिए कहीं बाहर लेते हैं। तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के लिए पहले मुझे बाहर जाना है, हम्म, मास्टर्स के डिग्री बीबीए एमबीए सॉरी एमबीए के लिए मैं कोशिश करूंगी कि बाहर जाऊँ। हम्म, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। जैसे जब मुझे अपनी टेडेक्स टॉक के लिए जो हम्म, जो मेरा ओवरऑल कॉस्ट्यूम में जो गेटअप है मेरा, मैं उसे ढूंढ रही थी कोई पाकिस्तान कहाँ है लड़कियों के लिए वेस्टर्न वेयर, मतलब प्रॉपर सूट जो मुझे पहनना था वो नहीं था। तो मेरे जहन में एक बिजनेस आइडिया तो ये है कि लड़कियों के लिए वेस्टर्न वेयर प्रॉपर, जिसके जो ऑब्वियसली वर्किंग लेडीज हैं जो ऑफिस में काम कर रही हैं जो इस तरह के इंटरव्यूज और इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज होती हैं कि उनको ज़रूरत पड़ती है वेस्टर्न वेयर की, तो वो एक प्रॉपर वेस्टर्न वेयर रीजनेबल प्राइस पे ताकि ज़्यादातर लोग उसको एक्सेस कर सकें। एक राइट. ये मेरा बिजनेस आइडिया है जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं आगे फॉर शुक्र. बढ़ाऊँ। बाकी इन्वेस्टर्स का ये है कि कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो अभी भी मेरे पास हैं। मेरे एक पुराने स्कूल टीचर हैं जो मुझसे कहते हैं कि कुछ शुरू करो, तो मुझे मतलब मैं चाहूँगा कि इन्वेस्ट करूँ। ताकि उन्हें उन्हें नहीं पता कि मेरी इस वक्त फील्ड से रिलेटेड नॉलेज कितनी है। वो बस मुझ पे भरोसा करते हैं कि कुछ ज़रूर मतलब अगर इसने माइंड बना लिया है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो जाएगा। तो इस तरह से एक बिजनेस आइडिया मेरा ये है। इसके अलावा मैं एक ऑनलाइन लाइब्रेरी चाहती हूँ कि मैं बना सकूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर में थी मैं जब मुझे उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक स्कॉलरशिप मिली थी टेक करो के नाम से, जिसमें वो हमें बेसिक वेब डेवलपमेंट सिखा रहे थे। तो मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, लेकिन जावा सीखने से पहले नेशनल टैलेंट प्रोग्राम के सेशन शुरू हो गए तो मुझे उसको क्विट करना पड़ा। तो वहाँ से जो मैंने बेसिक वेब डेवलपमेंट सीखी है मैं चाहती हूँ उसको भी मैं थोड़ा सा परस्यू करूँ। तो मैं एक डिजिटल लाइब्रेरी या फिर एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहती हूँ जहाँ पे वो बच्चे फ्री में किताबें और इस तरह से चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकें ताकि उनके लिए मज़ीद आसान हो जाए। और ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि उस डिजिटल लाइब्रेरी को औरंगी में लेकर आऊँ, क्योंकि अगर इन बच्चों को वो रिसोर्सेज मिल गए ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल। I mean, these are really, really fantastic dreams. काफी जो है वो substantial हैं, काफी ambitious भी हैं. And I hope and wish that you'll be able to achieve all these dreams that you have planned for yourself. अच्छा, अब
थोड़ा सा ये है कि चूंकि आपने अपनी डिजिटल लाइब्रेरी की बात की, सो दैट लीड्स टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपको पढ़ने का कितना शौक है। आई मीन नॉट जस्ट द टेक्सचुअल बुक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ ऑफन यू रीड, एंड अपार्ट फ्रॉम रीडिंग व्हाट अदर हॉबीज यू हैव। तो अगर अपनी हॉबीज के बारे में अगर आप बात करें तो आई थिंक व्यूअर्स सुनना चाहेंगे कि आफरीन जैसी लड़की जो कि एक स्लम से ताल्लुक़ रखती है, तो उसकी क्या हॉबीज हैं? Um, I explore my computer as a hobby. Like कंप्यूटर। recently, I made few posters using Microsoft Word. तो ओके। Word को यूज करते हुए पोस्टर डिजाइन करना, तो मतलब मेरे लिए ये चीज़ हमेशा बहुत फैसिनेटिंग रही थी। जब भी मैं फ्री हूँ तो मुझे कंप्यूटर पे ही कुछ ना कुछ करना है। पावर पॉइंट पे पूरा कमांड होना चाहिए। इन दिनों मैं एक्सेल पे कमांड हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। वेब डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे वीडियो बनानी थी, वो 20 मिनट्स लॉन्ग वीडियो की रिक्वायरमेंट थी, और मुझे एक वेबसाइट मिली एनिमेकर के नाम पे जिस पे मैं एनिमेटेड वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन ऑब्वियसली वो एक पेड वेबसाइट थी, तो सिर्फ मतलब अलाउड इस तरह से था कि आप सिर्फ 2 मिनट शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। इस तरह की मैंने 10 अलग वीडियोस बनाकर उनको फिर कंबाइन किया। तो मुझे मज़ा आता है कि ऐसे मैं नई नई चीज़ें अपने कंप्यूटर पे करूँ। बाकी आपने जो बुक्स का पूछा, मुझे उर्दू लिटरेचर का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से। जब मैं छोटी थी तो मुझे ये था, और उर्दू लिटरेचर में जो मेरे एक आइडल रहे हैं वो सर सैयद अहमद खान रहे हैं। मतलब उन्हें, सर सैयद अहमद खान को ही किताबों में बताने के लिए कि वो कैसे थे, खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल होते थे कि सर सैयद को लिखने का हैरत अंगेज मलका आता हुआ। तो पढ़ के मजा आता था कि हैरत अंगेज मलका आता हुआ है। मुझे था कि मैं उर्दू लिटरेचर मतलब बहुत खूबसूरत उर्दू बोलूँ मैं, मतलब मेरे अल्फाज और मतलब उर्दू के सारे ऐसे होने चाहिए कि खालिस हों, जितनी शीरी जुबान है उर्दू। इसके अलावा शायरी का बहुत शौक था मुझे। मैं शायरी बहुत ज़्यादा उर्दू पढ़ा करती थी। मेरा फेवरेट शेर जो मैं अपने दोस्तों को जब भी बताती हूँ तो मुझे उसको साथ में एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, क्योंकि उनका समझ नहीं आती मैं क्या बोल रही होती हूँ। तो मैंने उनको जो मेरा फेवरेट शेर है वो मैं बताना चाहूँगी। कहते हैं खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सुकूते लालो गुल से कलाम पैदा कर। एंड आई लव द आइडिया ऑफ दिस पोएट्री बिकॉज शनास यानी वाकिफ होना, समझना। तो अगर खुदा ने तुम्हें एक ऐसा दिल दिया है जो फितरतों को समझता है, तो लालो गुल फूल है, तो फूलों की खामोशी से बातें करो। लाइक हाउ ब्यूटीफुल द आइडिया इज कि आप खामोशी से किस तरह से बातें कर सकते हैं। लाइक एक फिलोसफिकल आइडिया है जो इकबाल में दे रहे हैं। इसके अलावा मुझे अपने बचपन का एक इंस्टेंस याद है। मैं 5th स्टैंडर्ड में थी शायद, और मुझे मिलिट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मुझे चाचू के रूम से एक किताब मिली कमांडो 4 के नाम से। उर्दू में थी वो किताब, और उसमें पूरा एक्सप्लेन था कि किस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ हमसे। और मैं उसको इस तरह से पढ़ती थी कि मतलब मैं स्कूल से आई हूँ और मैं रूम में बैठी हूँ किताब लेकर, और अम्मी डांटती रहेंगी कि खाना खा लो, खाना खा लो। फिर मैं थोड़ी देर बाद जल्दी से खाना खाऊंगी, ट्यूशन भागूंगी। और मैं इतना ज़्यादा उस बुक में मतलब खुद को इन्वेस्ट करने लगी थी कि मेरी अम्मी ने वो किताब छुपा दी। आई स्टिल रिमेंबर, मैं किसी प्रोपेगेंडा को शुरू करने वाली थी पढ़ना, आधी किताब में पढ़ चुकी थी, और मेरी अम्मी ने वो बुक छुपा दी। वो बुक मुझे आज तक नहीं मिली। मतलब वो मुझसे इतनी तंग हो जाती थी कभी कभी कि क्यों, मतलब तुम इतनी सब किताबों को लेके बैठी होती हो। बाकी अब इंग्लिश बुक्स की तरफ भी जो है वो थोड़ा सा शुरू हुआ है मेरे लिए। शुरू में मेरे लिए मुश्किल होता था उसको रीड करना, क्योंकि नींद आने लगती थी मुझे, तो मैं नहीं बहुत ज़्यादा रीड कर सकती थी। क्योंकि एक इंसान का अपना भी एक होता है कि किस तरफ वो ज़्यादा इंक्लाइंड है, अपनी किसकी पर्सनालिटी किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो मैं ज़्यादा इस तरह से पोट्री की तरफ या कंप्यूटर्स की तरफ, मतलब जल्दी 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 वो चीज़ें मतलब हमेशा भाग रही होती है आपकी। तो किताबें मुझे लगता है कि एक तरह से आप रुक जाते हैं, और मतलब एक खुद को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ में। लेकिन फिर जब मैंने इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू किया तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। वंडर पढ़ा मैंने, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सन इज आल्सो अ स्टार, द वर्ल्ड विदाउट फिश। इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब भूमि की कुछ किताबें, अल्केमिस्ट वगैरह। तो मतलब अब अच्छा लगता है इस तरह से सारी चीज़ें। और मैं आपको बताऊं, जो मुझसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, तुम लोगों की इंस्पिरेशन बन रही हो, तुम्हें भी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई इंस्पिरेशन मिली हो, मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट जहाँ से तुम्हें लगा कि अच्छा अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इस डायरेक्शन में जाना चाहिए या अब तुम्हें ये करना चाहिए, तो वो तुम्हारी इंस्पिरेशन क्या है?
मेरी इंस्पिरेशन बुक्स है बुक्स लोगों के लिए। ओके हाँ, लोगों को लोगों के लिए मतलब किताबें नहीं इस तरह से उनके लिए सिर्फ आई थिंक रीडिंग की हद तक महदूद है समथिंग उनके लिए वो किताबी बातें हैं लफाजी बातें हैं मतलब something that never happens in reality but for me it's like if I read something और वो मुझे चीज समझ आई है मुझे वो आइडिया अच्छा लगा है that will stick to my mind जैसे 10th स्टैंडर्ड में अपनी उर्दू की टेक्स्ट बुक में मैंने एक लाइन पढ़ी थी चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो और मुझे वो लाइन इतनी खूबसूरत लगी थी कि वो लफ्ज ब लफ्ज मुझे वैसे ही याद हो गई और फ्रॉम दैट डे आई ट्राई माई बेस्ट मतलब टू हेल्प पीपल फ्रॉम द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी तो एक ये आइडिया था इसके अलावा वंडर में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि फ्रॉम बीइंग इफ यू हैव टू चूज बिटवीन बीइंग राइट और बीइंग काइंड चूज काइंड तो इस तरह के सारे अल्फाज मतलब जो छोटी छोटी बातें मुझे किताबों में अच्छी लगती हैं वो मेरे मोरल्स का हिस्सा बन जाती हैं और फिर मैं मतलब एक तरह से वो मेरी जिंदगी को चला रही है मतलब जो कुछ मैं जिंदगी में कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं उन बातों का मतलब जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो बहुत मेच्योर हो मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है या मेरी एज के जो बच्चे होते हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं उनसे अलग हो तो उसका एक रीजन ये भी है कि मुझे वो किताबी बातें लफ्ज ब लफ्ज याद होती हैं और जैसे मैंने आपको बोला मुझे खालिस उर्दू बोलने का बहुत शौक है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भारी भारी उर्दू के अल्फाज अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर रही हूँ मुझे वो चीज अच्छी लगती है नहीं आई थिंक दिस इज रियली रियली फैसिनेटिंग फॉर द पीपल जो कि आजकल जो है वो अंग्रेजी किताबों और कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आल्सो लर्न योर ओन लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज में काफ़ी कंटेंट मौजूद है काफ़ी किताबें मौजूद हैं हमारा लिटरेचर जो है काफ़ी इनरिच्ड है अच्छी किताबों से एंड आई थिंक एंड आपने जिस तरह से बताया कि आप उनको रीड कर रही हैं और वर्ड्स का जो इम्पैक्ट है आपकी ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर या आपकी अपनी जो इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा है एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई पीपल रीड and most of the leaders are readers right so if you want to lead in future the one basic formula is to read and read more uh, uh, thank you so much Afin for sharing your likings and dislikings अच्छा जी तो मुझे थोड़ा सा हम थोड़ा लाइट रखते हैं उसको let's do a rapid fire with you I'll be asking few quick questions and you have to answer them in not more than three words I guess कि थोड़ा सा rapid ही रहे ठीक है so whatever comes to your mind after listening to that particular question or statement just go away with that acha ji so let's start off with the first question uh, your favorite book wonder uh, which food you like what do you like to eat desi food any particular dish not really like but pulao no okay all right your inspiration my father uh, what comes in your mind when you hear the word hope yeah Allah and what about success soon to be achieved all right नहीं माशाल्लाह यू हैव बीन सक्सेसफुल देखिए सक्सेस का ताल्लुक जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी जो आपने फ्यूचर में सोचा हुआ है यू हैव अचीव अ लॉट ऑफ माइलस्टोन्स एंड ऑल दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर सक्सेस एज वेल अच्छा आपकी योर फेवरेट कलर ब्लैक ओके फेवरेट मूवी not Miracle in Cell Number 7. I've recently watched it. Other than that, I don't like any movie in particular. Okay. Miracle in Cell Number 7. It is a Turkish movie. Turkish movie. Okay. Acha. So if I ask you to pick three things in your life, अगर आप सारी चीजें छोड़ दें और सिर्फ तीन चीजें पिक करना चाहें अपनी लाइफ में तो वो क्या होंगी in order of priority religion, education, okay family.
one message for the youth and for the people like you, for the students like you. Hmm. There's nothing in this world that can stop you. Like, don't settle for any less than you deserve. Right. In Thank you so short, much, Afreen. do Thank not you so much, settle. Afreen. हिम्मत ही नहीं है, रुकना ही नहीं. Right. Thank you so much, Afreen. This was wonderful. I mean, I think this interview will give a lot of messages to the people who are listening to us, who are watching us. And हम इंशाल्लाह जो है वो हम जब next story में किसी से मिलेंगे, they will be having more impactful stories in the time to come. Thank you, Afreen. Thank you so much for your time. Thank you so much. Allah Hafiz. खुदा हाफिज.